नमस्कार दोस्तों, आस्क आवर एक्सपर्ट्स के एपिसोड 39 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक स्पेशल लाइव सीरीज है जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित है। Our today's topic is digital identity reimagined, secure, verifiable, private. सरकार जल्द ही लॉन्च करने जा रही है नया आधार ऐप जो आपकी डिजिटल पहचान को और ज़्यादा सुरक्षित, आसान और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस एपिसोड में हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे कि ये नया आधार ऐप कैसे काम करेगा, हमारे डेटा को कैसे सुरक्षित करेगा और ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे मदद करेगा। आई वेलकम टू द शो श्री विवेक सी वर्मा, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल UIDAI-HO, and Ms. Tanushree Dev Verma, Deputy Director General UIDA Tech Center. I welcome you both to the show, sir and ma'am. Thank you. दोस्तों, ये ऐप का एक बीटा वर्जन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जिसका QR कोड अभी आपके स्क्रीन पे आएगा। आप उस QR कोड को ज़रूर स्कैन करिए और ऐप को डाउनलोड करने के लिए उस QR कोड को स्कैन करके आसानी से अपना फेस ऑथेंटिकेशन और अपने आधार नंबर के साथ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो मैं आप सबसे दरखास्त करूंगी कि आप उस QR कोड को ज़रूर स्कैन करिएगा व्हेनेवर इट इज़ शोन ऑन द स्क्रीन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे शो में आपके सवाल जो हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो आप जब हमारी डिस्कशन सुनेंगे, आपको हमारी डिस्कशन से नई आधार ऐप के बारे में जो भी सवाल आते हैं, whatever questions which come to your mind, you kindly write those questions in the YouTube live chat. I will ensure to ask those questions to our two experts today and learn most and better about the app within this program. So sir, my first question would be to you, please. What are the main goals of the new Aadhaar app being developed by UIDAI and the Government of India? See, the main goals of Aadhaar app is basically to bring digital identity, strength and control of digital identity to the actual user, the person who is using the app. And this is bringing lot of services and other facilities also to them. The first thing is that once you are onboarded on the Aadhaar app, you will be able to show it, you will be able to verify yourself in an offline manner. And basically it will be replacing the current massive use of paper based Aadhaar. Right now wherever we want to go, people ask for a photocopy of Aadhaar. Now that will be almost gone because it is also very much prone to frauds. Right. Because the person who is giving the Aadhaar, whether it is photoshopped or it is a fraudulent or it is correct, it is generally difficult from a photocopy. Here all those things are over. So you will be able to verify the person who is giving you identity. You can have a control over what you are sharing wherever identity. Right now we have to share almost everything. You will have a control there. It is also bringing in some facilities where we would like that people should do it from the comfort of their home, like mobile number update will be getting added here. So ultimately our objective is very, very clear that my resident centric, our client centric, which is the Aadhaar number holder, which is the entire population of the country, they have to be facilitated. They have to do things in a much cozy manner, in a comfortable manner. They should get facilitated. So basic objective is towards my residents. Right. Thank you, sir. Ma'am, this brings me to you. There is already an M-Aadhaar app that we citizens are using. So what is the main difference between the two apps? So the M-Aadhaar app has been in vogue for almost 3 years now. There was a dire need for a tech refresh. But more importantly, there is a new technology of enabling Aadhaar verification without having to authenticate from the source of truth or the issuance agency. Till date, there was a mandatory requirement that अगर आप आधार यूज़ करना चाहेंगे तो आपको AUA बनना पड़ेगा, आपको ऑथेंटिकेशन एजेंसी बननी पड़ेगी। और जो ऑथेंटिकेशन एजेंसीज नहीं हैं उनके लिए उनको द ओनली वे टू चेक वाज दिस, जो सर ने बोला पेपर से चेक करें। मैक्सिमम वो लोग QR कोड को वेरीफाई करके वेरीफाई कर सकते थे।
बट उसमें कोई डिजिटल एनेबलमेंट नहीं थी। अब न्यू वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिससे हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी देते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट जो इशू करते हैं उसमें वो वेरीफाइबिलिटी हो जाती है इन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, उसमें UIDAI का डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है। That is the differentiator of the new technology that we are enabling, verifiable credentials, and that is why the new Aadhaar app enables people, empowers people to share amongst each others their credentials without having to tell the issuing agency कि मैं इनको issue कर रहा हूँ और मैं इनको verify कर रहा हूँ। That's the power of the new application. So वो हमारा M-Aadhaar में था नहीं। एक और differentiator है कि हम मोबाइल अपडेट पहले सेंटर में ही जाके कर सकते थे। अब जो टेक्नोलॉजी आई है, हम इससे फेस ऑथेंटिकेशन घर बैठे अपने फ़ोन पे कर पा रहे हैं। तो इससे डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो रही है और आपका आधार जो आपके न्यू आधार ऐप पे है वो और सिक्योर हो पा रहा है। उसकी वजह से मैं आपको मोबाइल अपडेट घर बैठे दे पा रही हूँ। राइट। तो ये दो डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से ये सर्विस भी हम घर पे दे पा रहे हैं। तो ये दो मेजर डिफरेंशिएटर्स हैं। Wow. So, sir, if you would like to explain more about any other key features this M-Aadhaar app will bring, which our users should know about? This Aadhaar app. So, Aadhaar app is, we should understand एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि आधार ऐप जो है एक ऑफलाइन वर्जन है। सो ऑफलाइन का मतलब है कि जैसे पहले जब आप किसी से आधार लेते थे, आधार की कॉपी लेते थे, तो वो एक आधार नंबर होल्डर और उस एंटिटी के बीच का आपस का रिक्वायरमेंट है। वैसे ही उसी तर्ज पे ये बना है। तो ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन होने की वजह से हमारा CIDR या जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं आधार का, उससे कनेक्ट नहीं होता। आप जैसे अपनी एक फ़ोटोकॉपी देते थे, उसकी जगह आप एक QR कोड स्कैन करेंगे। बहुत सिंपल टू यूज़ है और हम लोगों का टारगेट था कि जैसे UPI आज की तरह से पूरे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसी तर्ज पे QR कोड है। तो एक सिंपल सा QR कोड है, उसको आप स्कैन करिए, आपके सामने आ जाता है कि आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है और कौन मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। तो कंसेंट बेस्ड फ्रेमवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमारे ऐप में इनबिल्ट है। तो उसकी वजह से जब आप रिजेक्ट कर सकते हो अपनी रिक्वेस्ट को, अगर आप चाहो कि नहीं देना चाहते हैं हम, तो मत दीजिए। आप चाहिए तो अप्रूव कर दीजिए और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाएगी। फैमिली 5 लोग उसके अंदर आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो 1 फैमिली 1 ऐप टाइप का कंसेप्ट आ जाएगा इसके साथ। तो वो पूरी की पूरी फैमिली अगर कहीं जा रही है और उसको अपनी आइडेंटिटी दिखानी है, तो वो एक ही ऐप से आप दिखा सकते हो कि हमने ये 5 पूरी फैमिली मेम्बर्स के लिए हमने एक ऐप दिखा दिया। इसके अलावा इसमें जैसा मैडम ने बताया, एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल, ये कंसेप्ट बहुत कई जगह पॉपुलर हुआ है, लेकिन हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पार्ट इन्फॉर्मेशन भी अगर हम दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट स्टिल वैलिड है। राइट। ऐसा नहीं है कि आपको हम आधार अगर मास्क करके दे दें हाथ से कि नहीं आपको तो ईमेल आईडी नहीं चाहिए तो मैंने हाथ से काट के दे दिया, वो वैलिड नहीं मानते आजकल। बोले साहब ये तो टैम्पर डॉक्यूमेंट है। इस केस में हमारे पास एज ए यूज़र कंट्रोल है कि नहीं भाई, उसको केवल फ़ोटो और एड्रेस चाहिए और नाम चाहिए, तो हम केवल उतना ही इन्फॉर्मेशन देंगे। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा और भी आएगा, जो DPDP रूल्स जैसा आपको पता है कि ये पब्लिश हो गए हैं, एक्ट पास हुआ था, मिनिमाइजेशन ऑफ डेटा। कम से कम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमारी एंटिटी को, तो वो कम से कम इन्फॉर्मेशन देने का अब इसमें प्रावधान आ गया। पहले ये प्रावधान था नहीं, तो एंटिटी को पूरी इन्फॉर्मेशन आधार की लेनी पड़ती थी। अब वो एक अलग सुविधा मिल रही है हमारे एंटिटीज़ को कि आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लीजिए। राइट। तो अल्टीमेटली टारगेट ये है कि आपको जो सुविधा मिल रही है अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने की, दोनों के लिए, आधार नंबर होल्डर के लिए भी और वो क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जो सामने की एक कंपनी है जो आपको वेरीफाई कर रही है, दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल इससे काफ़ी बढ़ना चाहिए।
थैंक यू सर। सो ये जो आपने बताया 1 पीपल 1 आधार वाला, 1 पर्सन 1 आधार वाला, 1 फैमिली 1 आधार वाला, ये कॉन्सेप्ट श्योरली सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करने चाहता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा क्वेरीज कई बार आता है कि मेरे मम्मी पापा जो विलेज में रहते हैं वो आधार को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐप को उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो फ़ोन चलाना नहीं जानते हैं। सो अगर उनका बच्चा यहाँ शहर में है तो वो इस आधार ऐप के थ्रू अपना मम्मी पापा का भी आधार को उसी एक ही ऐप में सॉर्ट कर लेगा। हाँ, ले सकता है, शो शेयर कर सकता है, लेकिन कंसेंट सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल आधार नंबर होल्डर का लेना ज़रूरी है। दिस विच मेक्स इट मोर सिक्योर। मोर सिक्योर। ये नहीं हो सकता कि मैंने किसी को प्रोफाइल में ऐड कर लिया, हम उसके रिकॉर्ड चेंज कर लेंगे। नो, राइट। उसका कंसेंट के लिए उसका फेस वेरिफिकेशन होगा जब भी हम उसके कोई डेटा में चेंज करना चाहेंगे। तो किसी का भी हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो मेरी फैमिली का हो। तो इंडिविजुअल की जो राइट्स हैं, कंट्रोल है, वो पूरी तरह से इसमें मेंटेन किया गया है। Very well, sir. Thank you. Ma'am, what does it mean when officials say that you don't need to carry a physical Aadhaar card or photocopies anymore? थोड़ा सा और अगर आप हमें डिटेल में बताएं। So, अब तक आपको सबको पता है कि हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ फ़ोन पे हो। हम बैग नहीं कैरी करना चाहते, हम वॉलेट नहीं कैरी करना चाहते हैं, सब पैसा बस UPI से देना चाहते हैं, वो पर्स नहीं रखना चाहते हैं। तो लेकिन वो कैसे इंश्योर करें? आपका आधार फिजिकल फॉर्म में सब मांगते हैं, फोटोकॉपी मांगते हैं। आप कार्ड दिखाओगे तो उनको श्योरिटी नहीं होती है, और उसको रखना भी कैसे है, वो स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट हो जाता है। तो हम चाहते थे कि जैसे UPI में आप स्वाइप करके ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही आप आधार भी ऐसे करें। तो वी आर कॉलिंग इट द UPI ऑफ डिजिटल ID, एंड द फ्लोज आर वेरी वेरी सिमिलर। कि अगर आप अपना आधार अपने फ्रेंड को देना चाहते हैं या फिर अपने फ्यूचर एम्प्लॉय को देना चाहते हैं, तो आप ऐसे फॉर्म में दे पाएंगे जो आपका एम्प्लॉय श्योर हो सकता है कि ये राइट सोर्स से दिया है, इसमें कोई टैम्पर नहीं किया गया है। एंड द टेक्नोलॉजी इज़ एनेबलिंग दैट। वो आपके फ्यूचर एम्प्लॉय उसको डिजिटल OVSC बन के कर सकते हैं ताकि उनके पूरी फ्लो डिजिटल हो। राइट। 1:1 भी पीयर टू पीयर भी कर सकते हैं कि वो बस आपका QR कोड आधार ऐप से ही पढ़ के उसको कंफर्म कर ले कि ये यही है जो वो बोल रही हैं। ओके, थैंक यू मैम। नाउ जैसे हमने फीचर्स के बारे में बात करें हैं, सर इफ़ यू कैन शेयर सम यूज़ केसेस ऑफ दिस न्यू आधार ऐप विद अस। यूज़ केसेस इसके काफ़ी वेरिड हैं। अभी तक करीब 12 कंपनीज हम लोगों के पास इनिशियल स्टेज में आई थी जिन्होंने हमारे साथ एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट किया। सबके अलग अलग यूज़ केसेस हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं, जैसे होटल। तो होटल में 2 स्टेजेस होती हैं, एक बुकिंग की स्टेज होती है जब आप कमरा बुक करते हो, और एक चेक इन की स्टेज होती है। दोनों में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि आपके लिए होटल कोई भी बुक कर सकता है, लेकिन जब चेक इन होना है तो आपको ही होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप आधार ऐप से वेरीफाई करते हो, तो जब आपने बुकिंग करी है, आपने वेरीफाई कर लिया, जब आप होटल में चेक इन के लिए पहुँचे तो आप अपना QR कोड उन्होंने लगा के रखा हुआ है, आप QR कोड से स्कैन करिए और उसको स्कैन करके आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी। लेकिन उसमें एक फ़ीचर और भी है बहुत अच्छा सा, वो है प्रूफ ऑफ प्रेजेंस। ये प्रूफ ऑफ प्रेजेंस का फ़ीचर ये है कि अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है, इस इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो बंदा आया है ये वही है जिसने आधार हमको शेयर किया था या डिटेल्स, तो वो फ़ोटो वेरिफिकेशन, अपना फेस वेरिफिकेशन वहीं का वहीं करेगा, और उसके साथ वो फ्लैग होके उसको होटल को डेटा मिल जाएगा कि हाँ साहब ये वही बंदा है, वही बंदी है। नाउ इसके अलावा इस तरह के हैं, जैसे हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं, उसमें आप जाते हो तो सारा डिटेल फॉर्म भरने वाली बात होती है, वो सब की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे स्कैन करिए, सारा डेटा ट्रांसफ़र हो गया। बहुत सी जगह ज़रूरत होती है केवल एक लिमिटेड डेटा देने की, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग में अक्सर लोग स्यूडो नेम्स यूज़ करते हैं, लेकिन गेमिंग प्लेटफॉर्म को ये पता होना चाहिए कि 18 ईयर्स के ऊपर है या नहीं है। राइट। तो आप सिर्फ उतना ही कंफर्म करा सकते हो इससे कि यस ये आदमी जो है इज़ अबव 18। तो गेमिंग प्लेटफॉर्म इज़ हैप्पी, उसका लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरा होता है, ये भी हैप्पी है कि उसको हमने केवल लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा
अभी हम लोगों के साथ केसेस हो रहे हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के। कंपनीज जो ऑन बोर्ड करती हैं, से फॉर एग्जांपल गिग वर्कर्स, उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ये बहुत यूज़फुल है। कैब ड्राइवर्स कंपनीज ऑन बोर्ड करती हैं, तो उन सब का वेरिफिकेशन इससे हो सकता है। इसके अलावा लीगल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उनके लिए भी बड़ा यूज़फुल है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए यूज़फुल है। कोई इवेंट अगर आप कर रहे हो तो कॉन्सर्ट में कौन अंदर घुस रहा है अगर आपको देखना चाहते हो तो आप खाली उसको देखते जाओ, कौन कौन जा रहा है, कौन कौन अंदर जा रहा है, आपके पास एक रिकॉर्ड भी आ जाएगा, वेरीफाइड है। तो इसके यूज़ केसेस तो एक्चुअली अभी इनोवेशन हो रहा है। राइट। ये तो एक हमने कुछ यूज़ केसेस बताए, अभी बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जो आ रहे हैं। कंपनीज आर गोइंग टू थिंक, और वो नए नए इनोवेटिव यूज़ केसेस लेके इसके आएंगे अभी। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने सोच के उनके प्रोविजंस किए हैं, पर हमें डेफिनेटली लगता है कि यूज़ केसेस विल बी मच मच मोर देन व्हाट वी कैन थिंक ऑफ टुडे। थैंक यू सर। मैम, हाउ डज द QR कोड स्कैनिंग वर्क फॉर आधार वेरिफिकेशन? So there are two methods of QR code scanning. आप जो किसी के साथ शेयर करते हैं, आपने देखा होगा आपके PVC कार्ड में या फिर आधार लेटर में एक QR कोड होता है। सो वो डिजिटली साइंड है, और वो आधार अगर उसमें कोई टेम्पर होता है तो आधार ऐप या फिर आधार के जो QR कोड स्कैनर है उससे वो खुलेगा ही नहीं। सो देयरफॉर इट्स अ टेम्पर प्रूफ मेथड ऑफ शेयरिंग योर क्रेडेंशियल्स। एंड दूसरा तरीका है कि जो आपसे मांग रहा है QR कोड, सॉरी आपका आधार डिटेल्स, उसका एक और QR कोड लाइक अ फेचिंग QR कोड वो हो सकता है। सो दोनों में डिफरेंस है। एक जो मेरा आधार का QR कोड है जिसमें मेरा नाम, मेरा फ़ोटो और मेरी डिटेल्स हैं, और दूसरा QR कोड होएगा जैसे UPI का QR कोड होता है और आप उसको पढ़ के अपना पैसा देते हो। हम इसमें कोई भी एंटिटी, जैसे सर ने बोला कि आप किसी होटल में गए, वहाँ पे एक QR कोड है, आपने वो QR कोड पढ़ा और अपनी जो आप चाहते हैं, नेम फॉर एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल, बाकी कुछ नहीं देना है, तो आपने सिलेक्ट किया और आपने उसको शेयर किया। सो देयर इज़ अ टू वे मूवमेंट थ्रू QR कोड्स। राइट, थैंक यू मैम। मैं आप दोनों को बताना चाहूँगी कि वाइल वी आर डिस्कसिंग हियर अ लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड ऑनलाइन एंड इट्स फ्लडेड विद क्वेश्चंस। सो बीच में मैं एक दो क्वेश्चंस ले लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अर्जुन कि ये जो QR कोड स्कैनिंग है, वेयर कैन द यूजर्स यूज इट? राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अर्जुन, एज ऑन टुडे आप ये कर सकते हैं कि आप आधार ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना फर्स्ट जो स्क्रीन है उसमें आपको एक QR कोड आएगी, दैट इज़ मेंट फॉर यू टू शेयर और शो योर इन्फॉर्मेशन टू एनीबॉडी। आज आप अपना पर्स निकाल के एयरपोर्ट में आपका आधार दिखाते हैं, अब आप ना करें, आप अपना फ़ोन दिखाएं और उसमें आपका QR कोड आए, और कोई बोले तो उसको दबाए और उसमें आपकी फ़ोटो और आपकी डिटेल्स भी आ जाए। सो यूज़ योर phone as your Aadhaar card instead of paper. So that is one QR code usage. Then you can use it to आपका next जो employee आता है या फिर आपका जो गेट पे सिक्योरिटी बैठा हुआ है उसको आप enable कीजिए कि कोई भी अगर अपना आइडेंटिटी प्रूव करना चाहे तो आप विश्वास ना कीजिए, क्योंकि पेपर तो बहुत आसानी से आप फोटोशॉप कर सकते हैं, लेकिन QR कोड जो आधार ऐप में आता है वो नॉन रिप्यूडिएबल है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसे हम लोग एज ऑन टुडे भी यूज़ कर सकते हैं। सर ने जैसे बोला कि वेरियस एंटिटीज़ अब हमारे ऑनबोर्ड हो रहे हैं एज OVSCs, ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज़। जब ये इकोसिस्टम बढ़ जाएगा तब आप देखेंगे जैसे आपको UPI में सब्जी वाले के सामने भी एक QR कोड मिलता है, वैसे आपको हर जगह ऐसे QR कोड मिलेंगे। जो भी आपसे आधार मांगे उसको आधार ऐप, मतलब अपना फिजिकल कार्ड ना दे, उसको बोले आपका QR कोड किधर है, वो पढ़ के आप उसको डिजिटली दें। सो अभी ये आपको नहीं दिखेगा, बट वेरी सून अर्ली अडॉप्टर्स जैसे हम लोग काम कर रहे हैं उनके साथ, वो सब ये दिखाना शुरू करेंगे। थैंक यू मैम। आई होप अर्जुन आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैम, अपने क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेती हूँ। आर्यन जी पूछ रहे हैं कि आप लोग इसको ऑफलाइन ऐप कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, थोड़ा सा ऑफलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन का मतलब ये नहीं है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है जी। हमारे एक्ट में कुछ इस तरह की परिभाषा दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि ऑफलाइन मतलब
हमारे सेंट्रल डेटाबेस जो आधार का है उससे ये कनेक्टेड नहीं है। ये पूरी तरह से एक आधार नंबर यूज़र जो भी है आधार नंबर होल्डर है और एक जो उससे वेरीफाई कराना चाहता है, उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन है। इस बीच में UIDAI या आधार कहीं नहीं आता। आधार ये इंश्योर कैसे करता है कि ये सही है, वो ये इसलिए है कि जब हम ऑनबोर्ड करते हैं किसी को, नया आप जब ऐप डाउनलोड करोगे तो जब आपकी ऑनबोर्डिंग होगी उस समय फेस ऑथेंटिकेशन होगा। उस समय आपका फेस मैच कराया जाएगा हमारे डेटाबेस से, इंश्योर करने के लिए कि सही आदमी, सही इंसान इसके ऊपर ऑनबोर्ड हुआ है। एक बार वो आ गया, फिर जो ऐप में आपके पास डिटेल्स हैं उसी से वो वेरिफिकेशन होता है, इसलिए इसको ऑफलाइन बोलते हैं हम लोग। ऐसा डेफिनीशन है हमारे एक्ट की, पर इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि ये इंटरनेट से कनेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट से कनेक्ट होना नहीं होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। ठीक, मैं इसमें बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और आपके पास आधार ऐप डाउनलोड करके ऑनबोर्ड हो चुका है तो आपका QR स्कैनर तब भी काम करेगा। तो अगर इंटरनेट नहीं है तब भी अपना आधार शो कर पाएंगे और जो आपके सामने वाला है वो उसको स्कैन करके रीड कर पाएगा। उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ऑनलाइन कोई एक्टिविटी अगर आप उसके ऊपर करना चाहते हैं तब तो इंटरनेट उसके की लिए ज़रूरत इंटरनेट है। चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं सर। इस आधार ऐप को जो अभी अवेलेबल हम करा रहे हैं, क्या वो दोनों एंड्रॉयड और एप्पल यूजर्स दोनों के लिए करा रहे हैं? तो कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं? इज इट रेडी टू डाउनलोड एंड इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, अभी दोनों iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अभी बीटा वर्जन ऑलरेडी चल रहा है हमारा और शीघ्र ही वो लॉन्च होने वाला है। तो प्रोडक्शन वर्जन मिलना शुरू हो जाएगा सबको। वो QR कोड आप दिखाई रहे हो अपने चैट पे, उसको स्कैन करिए। यू कैन गो देयर इन आइदर iOS और गूगल स्टोर और आप उसको डाउनलोड करिए। फील द एक्सपीरियंस। आई होप इट विल बी अ हैप्पी एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, ये जो QR कोड आप देख रहे हैं, आप चाहे एंड्रॉयड यूज़र हैं चाहे आईफोन यूज़र हैं, आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये सीधा आपको आधार ऐप पे ले जाएगा। प्लीज़ उसे डाउनलोड करिए। कुछ बेसिक अपने आधार नंबर डालना होता है और फेस ऑथेंटिकेट करना होता है एंड एक्सपीरियंस द ऐप। और आपका ऐप के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम के चैट में, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं सर। कैन अ फैमिली मैनेज मल्टीपल आधार प्रोफाइल्स विद इन द सेम ऐप? हाँ बिल्कुल, 5 लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका प्रोफाइल उसमें मैनेजमेंट हो सकता है। जैसा मैंने बोला, सर्विसेज अगर लेनी है आधार की तो उस आधार नंबर होल्डर का होना आवश्यक है। और वो इसलिए है क्योंकि हर आधार नंबर होल्डर के पास एक प्राइवेसी का राइट है, कंट्रोल है। हम अपनी फैमिली का शो एंड शेयर करने के लिए आइडेंटिटी को रख सकते हैं अपने पास, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमको उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। उस कंसेंट को हम लोगों ने इसमें बड़ी स्ट्रांगली बिल्ड किया हुआ है। कोई भी किसी और का चेंजेस नहीं कर सकता है। और इसमें देयर आर एनफ फीचर्स जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि गलत तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा तो आपको OTPs आएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम किसी और का कर देंगे। अगर वो OTP दे रहा है, फेस अपना ऑथेंटिकेट कर रहा है, तभी होगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस हैं इस तरह की सर्विसेज में। तो इतनी आसानी से नहीं होगा, बट आसान इसमें यह है कि आप घर बैठे आराम से कर लोगे। मतलब मेरा अपना अनुभव है, जब हमने इसको किया था तो वो तो मुश्किल से 5-7 मिनट में हो गया, एप्लीकेशन हो गई। बाद में मोबाइल नंबर अपडेट भी हो गया, घर में बैठ के सुबह संडे की सुबह, मतलब एंजॉय कर सकते हैं लोग। लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। और यही बात, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या मैं अपने फैमिली मेंबर्स का भी आधार इसमें डाल सकता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया, आप 5 फैमिली मेंबर्स का आधार एक उस पे प्रोफाइल पे क्रिएट कर सकते हैं। सर, मेहरा उमेश जी पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी परफॉर्म्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एंटिटी? नहीं, ये अलाउड नहीं है। ओके। कोई भी एंटिटी जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर रही है
वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन किसी और के बिहाफ पे नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है, तो उसके अलाइनमेंट में नहीं आता। इसलिए जिस भी OVSE को हम रजिस्टर कर रहे हैं वो अपने लिए कर सकती है, उसका यूज़ केस हो सकता है कुछ, तो वो हम लोग क्लियर करके दे देते हैं कि हाँ भाई आप कर सकते हैं, किसी और के बिहाफ पे पॉसिबल। राइट, थैंक यू सर। मैम, क्योंकि ये ऐप चीज़ों को आसान बना रहा है, तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये चीज़ों को सिक्योर भी बना रहा है, सेफ भी बना रहा है? हाउ डज दिस ऐप इंश्योर privacy फॉर मी एज अ सिटीजन? So it ensures privacy and security. Yes. So privacy because आप अपना आधार कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो आप तक ही सीमित होएगा और जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं उनके साथ ही सीमित होएगा. Under the Aadhaar Act, there are only certain provisions under which it is mandatory to use Aadhaar. उसके बियॉन्ड आप आधार यूज़ कर सकते हैं, एक्ट अलाउ करता है, बट उसमें हमें एज एन UIDAI को उसकी जानने की आवश्यकता है ही नहीं. इन एनी अदर केस ऑल्सो हमें जानने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन because it is just between the Aadhaar number holder and the verifying entity and technology enables that with the root of trust कि इसमें कोई ये वही आधार है जो UIDAI ने इशू किया है और इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है थ्रू वेरीफाइबल क्रेडेंशियल टेक्नोलॉजी, इसीलिए इसमें इंश्योर हो जाता है कि ये सिक्योर है. राइट. सेकेंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट इज दैट उसका मिसयूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि अंडर DPDP आपने जिसको दिया वो डिजिटल फॉर्म में दिया. राइट. अब अंडर DPDP अगर उसको मिसयूज़ करता है तो अंडर ऑडिट है, अंडर सर्वेलेंस है कि मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उसको चेक कर सकती हैं कि ये तो गलत काम हुआ है, तो इसलिए उस पर कंप्लायंस आ जाता है कि वो गलत पेपर देयर इज़ नो एश्योरेंस कि वो कहाँ गया उसके बाद. राइट. उसकी जेरोक्स कितनी हुई और कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ. सो दिस इंश्योर्स दैट देयर इज़ सिक्योरिटी. सो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के कॉम्बिनेशन से ये और स्ट्रेंथन हो जाता है, स्पेशली फॉर ऑफलाइन वेरिफिकेशन यूज़. थैंक यू. इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे. इसमें एक और बहुत सिंपल सा फीचर है. आप ऐप को जब यूज़ करेंगे तो सिंपल एक टच से आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हो. ओके. तो जब आधार का बायोमेट्रिक लॉक हो जाता है, सपोज़ आप बहुत लिमिटेड यूज़ करते हो बायोमेट्रिक का, तो कहीं फ्रॉडुलेंटली यूज़ ना हो सके उसके लिए आप उसको लॉक कर दीजिए. बस एक टच करिए और वो लॉक हो जाता है. तो नाउ कोई भी उस पर बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन करने की कोशिश भी करेगा तो वो भी अलाउ नहीं करता. तो आप उसको फिर से टच करिए, वो अनलॉक हो जाएगा. तो आपके पास पूरा कंट्रोल आ गया. यस, बिल्कुल. कि हम इसको किसी और को यूज़ करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकता कोई. राइट. थैंक यू एक्सपर्ट्स. बड़ा बेसिक सा एक क्वेश्चन आया है. व्हाट आर द स्टेप्स टू रजिस्टर एंड एक्टिवेट योर आधार ऑन द न्यू ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम? सो इसका स्टेप बाय स्टेप इज़ वेरी सिंपल. जस्ट इससे पहले हमने किया 2 मिनट में आपका हो गया था. सो आपके पास आपका आधार नंबर हैंडी होना चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप. उसके बाद आप जैसे आपने QR कोड देखा उससे आप डाउनलोड कर लिए अपना iOS या एंड्रॉयड वर्जन, एंड स्टेप बाय स्टेप आधार ऐप आपको गाइड करेगा कि कैसे आपको ऑनबोर्ड होना है. आप आधार नंबर डाल के रजिस्टर करेंगे, उसमें 1 टाइम फेस ऑथेंटिकेशन होएगा, आपका सिम वेरिफिकेशन होएगा. ये दोनों का लिंकेज अगर करेक्टली हो जाता है तो आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा आपके आधार ऐप पे. सो फर्स्ट मेंबर एडेड टू द फैमिली. उसके बाद आप अपनी बिटिया और अपने बेटे का ऐड कर सकते हैं, अपनी बेटर हाफ का ऐड कर सकते हैं, अपने पेरेंट का ऐड कर सकते हैं. ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप से आप उसको ऑनबोर्ड कीजिए एंड देन यू हैव ऑल द प्रोफाइल्स which you want to keep on your phone. Right. Thank you, ma'am. Sir, is there any support for updating Aadhaar details like address or mobile number through the app itself in future updates? ये क्वेश्चन आया है नितिका जी से. नहीं, अभी अगर आप देखिए जो पुराने माई आधार पोर्टल है उसमें एड्रेस अपडेट का ऑप्शन आज भी है. वो घर में बैठ के आप कर सकते हैं. इसमें एड्रेस अपडेट तो आएगा ही, पर मोबाइल अपडेट आएगा. मोबाइल अपडेट में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको फ़िज़िकली जाना पड़ता था, वो अब जाने की ज़रूरत नहीं है. आप घर पे बैठ के कर सकते हैं. बाकी और भी फीचर्स हो सकता है हम लोग फ्यूचर में लेके आएंगे कि जितने भी अपडेट सर्विसेज हैं कोशिश करेंगे कि आप घर पे बैठ के जितने संभव हों
क्योंकि हम लोगों को एक बैलेंस बनाना है कि क्या पॉसिबल है और कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें फ्रॉड की संभावना हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को बैलेंस को ध्यान में रखते हुए और भी और फीचर्स आगे आएंगे। अभी फ़िलहाल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट ऐप में है। So the next question has come from Varun. He is asking, Aadhaar face authentication versus face verification, how will it work in the new Aadhaar app? Ma'am, if you would like to answer. So the Aadhaar app में face authentication बस एक बार होता है जब हम ऑनबोर्ड करते हैं रेजिडेंट को। जब जैसे मैंने बोला आपने प्रोफाइल स्टेप बाय स्टेप करते वक्त, तो हमने इंश्योर किया कि आप ही हो जो आप आधार ऐप का प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो एज तनुश्री, मेरा नाम तनुश्री है। उसके बाद आपने जब अपना आईडी किसी को देना चाहा और जो रिक्वेस्टिंग एंटिटी है वो चाहती है कि ये आप ही हो, ये इंश्योर हो, राइट, तो वो प्रूफ ऑफ प्रेजेंस चाह सकता है कि क्या पता आप अपने पेरेंट का यूज़ कर रहे हो, राइट। सो आपने बहुत बार देखा होगा कि फ़ोन आता है मम्मी का कि ओटीपी आया है, दे दो, और एक्सचेंज होके वो हो जाता है। सो दैट वे वी डोंट नो हु एक्चुअली डिड द ट्रांजैक्शन, बट इसमें अगर इट इज़ मैंडेटरी कि हम चाहे कि हम इंश्योर करें देयर इज़ अ प्रूफ ऑफ प्रेजेंस, तो उसमें हम फेस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो वो फेस जो आप प्रेजेंट करते हो वो आधार प्रोफाइल में जो फेस है उसके साथ रिमोटली मैच होता है, हमारे आधार डेटाबेस को टच नहीं करता है। एंड दैट प्रूफ ऑफ प्रेजेंस एज अ डिजिटल आर्टिफैक्ट कंबाइन होके आपके वेरीफायर के पास चला जाता है कि ये मैडम ने ही किया, उनके पतिदेव या उनके पेरेंट्स ने नहीं किया उनके बिहाफ पे। So that is a very powerful tool, and that's the difference between verification and authentication. Authentication is happening with Aadhaar. Right. Aadhaar is ensuring it is you who created the profile. Verification happened on your device without UIDAI not even knowing that it was done. Great. Thank you, ma'am. सर अपनी डिस्कशन में आप लोगों ने एक टर्म यूज़ करा है OVSE, ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज़। व्हाट आर दीज एंटिटीज़ एंड can you please explain कि how is it being used via the upcoming app? हाँ, OVSE क्या है कि OVSE is offline verification seeking entity। इसका प्रोविज़न आधार एक्ट में शुरू से था, पर अधिकतर इसको एक तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया था। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक रेगुलेशन पास किया है अथॉरिटी ने, जिसमें OVSE को हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर में लेके आ गए हैं, जिसकी वजह से उनको एक डेटा मिलेगा, डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र होगा आधार ऐप के थ्रू। तो इसमें एक OVSE क्या है, वो एक ऐसी एंटिटी जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना चाहती है। ओके। कुछ एंटिटीज़ ऐसी हैं जिनको ऑथेंटिकेशन चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क परसेप्शन के ऊपर, ऑन द यूज़ केस आप कितना रिस्क ले सकते हो ऑन आइडेंटिटी पार्ट। तो अगर आपको बहुत हैवी रिस्क है तो लोग ऑथेंटिकेशन के लिए जाते हैं अभी, और अगर आपका रिलेटिवली लेसर रिस्क हो सकता है, ये तो हर एंटिटी को अपने हिसाब से देखना है, तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन करेगा ऐप के थ्रू। अब उनको ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जैसे हमने बोला कि आप QR कोड दिखाएगा, वो QR कोड कैसे होगा, वो QR कोड मेरा ऐप पढ़ पाए, उसके लिए हम उनको रजिस्टर करके अपनी टेक्नोलॉजी देते हैं। राइट। वो एक OVSE बन जाएगा अगर हमने उसको रजिस्टर कर लिया किसी भी कंपनी को। वो चाहता है कि हम अपने क्लाइंट का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या पार्टनर का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो एक OVSE बन गया, उसको एक QR कोड की टेक्नोलॉजी मिलती है। हम जब जाएंगे एज ए इंडिविजुअल वो QR कोड स्कैन कर लेंगे और इन्फॉर्मेशन एग्री कर जाएंगे तो शेयर कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ वन OVSE। इस तरह से बहुत सारे OVSEs बनेंगे डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस। जिनको अपने बिजनेस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चाहिए, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं एम्प्लॉयज़ का, वो लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। इवन ये भी चल रहा है कि शायद कुछ पुलिस फोर्सेस इसको यूज़ करेंगी। तो बहुत तरह के लोग हैं जो इस तरह की
वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, राइट। तो उन सबको OVSC बनना सर पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी एक आया हुआ है, ऊपर आया था कि क्या स्टार्टअप्स भी इसको यूज कर पाएंगे किसी तरीके से? बिल्कुल कर सकते हैं, अपने उसके वेरिफिकेशन बिल्कुल कर सकते हैं। उन्हें OVSC के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। राइट। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ऑनलाइन टाइप की प्रोसेस हम लोग ला रहे हैं, अभी तो मैनुअल है, मगर वो आधा 1 पेज का फॉर्म है, राइट। भर के भेजे, हम लोग रजिस्टर कर देते हैं, नॉट टू मच ऑफ रिक्वायरमेंट्स। Thank you, sir. There's another question from Prashant ji. He is asking that what should users do if their registered mobile number changes? Can the app still be used, ma'am? So there is a disclaimer that अगर आपका इनिशियल आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो आप मोबाइल अपडेट नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपका पुराना नंबर आपके पास है तो आप मोबाइल अपडेट कर सकते हैं। सो बिकॉज जो मोबाइल इज़ अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वी वांट टू मेक श्योर दैट उसका चेंज तभी अलाउ हो जब फेस भी वही आए जो होनी चाहिए और मोबाइल भी उसके पास होनी चाहिए जो पुराना वाला है। सो पुराने वाले से नया ट्रांसफ़र करने के लिए एक OTP पुराने मोबाइल पे जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन डालने से नया मोबाइल लिंक हो जाएगा। ऑल राइट, थैंक यू मैम। सर हाउ डज द न्यू आधार ऐप, अगर हम पॉलिसी बेस्ड कुछ पूछें कि हाउ डज इट अलाइन विद द इनिशिएटिव्स अंडर डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया अगर आप देखिए तो उसके जितने भी पिलर्स हैं, जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मोस्टली डिजिटल इंडिया का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सिटीजन सेंट्रिक। राइट। कि मेरे सिटीजन जो हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए, चाहे ई गवर्नेंस हो, चाहे स्कीम्स हो, चाहे कोई भी सुविधा हम चाहते हैं कि जो हमारे अल्टीमेटली हर इंडियन नेशनल और रेजिडेंट को मिलनी चाहिए। जो जनरल योजनाएं हैं जिनको जो यूज़र स्पेसिफिक नहीं हैं, लेकिन उसमें तो एक जनरल ई गवर्नेंस चलती है, पर यूज़र स्पेसिफिक जितनी भी हैं उन सब का आधार जो है वो आधार ही है। yes. क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना है कि हम किसको बेनिफिट दे रहे हैं, हम किसको ये सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो क्रेडिबल इंसान हमारे सामने होना चाहिए। तो इन सब की जितनी भी योजनाएं अगर आप देखिए, जितनी भी सिटीज़न सेंट्रिक योजनाएं हैं, वो सब की सब आधार के ऊपर ही बेस्ड है। तो आधार ऐप जो है इस मामले में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आपकी जेब में आ गया जी। अब आप मोबाइल सब लोग लेके घूमते हैं, तो आपके जो ऐप है वो आपकी जेब में पड़ा हुआ है। आपको जहाँ सर्विस लेनी है आप उसको दिखाइए और सर्विस अपनी क्लेम करिए। राइट। दोनों लोग कॉन्फिडेंट हैं, लेने वाला भी खुश, सर्विस देने वाले को भी पता है कि हाँ भाई ये ऑथराइज बंदा था, सही बंदे को दिया। सो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस system. It is going to actually give a lot of fillip to Digital India platform schemes and programs. थैंक यू सर। सर इसी के ऊपर एक हमारे पास क्वेश्चन आया है चंचल गर्ग जी का। शी इज आस्किंग, कैन द न्यू आधार ऐप बी यूज्ड फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेस डायरेक्टली? Yes, it can be. See, गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। टुमारो इफ गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़ आधार ऐप ओनली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर बेनिफिट, either direct benefit transfer or any other goods transfer, so then it can be used. Right. It is now for a call to be taken by the state governments, central government, various schemes and ministries to start using the app. Considering the credibility, it will be very easy rather than taking a physical copy and verifying the availability or the credibility of that individual. Right. So it will be possible, but it is for the state governments to take a call, the central governments to take a call. Right. She is also asking, ma'am, if you would like to take this question. Chanchal Gargji is also asking how this app is different from DigiLocker app. So DigiLocker app is a digital wallet per se, and it has integrated with several issuance authorities to ensure that there is a physical copy or digital copy that can be converted and kept on its wallet.
but the Aadhaar app is the issuance agency app. So the issuance agency has never been DigiLocker. It has only been the agent for movement of that document. बोला जाए तो हम DigiLocker के साथ भी इंटीग्रेट कर चुके हैं, एंड ड्यूरिंग द लॉन्च इवेंट दे विल ऑल्सो बी देयर, जिससे जब हम आधार ऐप का प्रोफाइल बनाएंगे और हम उसको कहीं पे रखना चाहेंगे, कहाँ पे रखूँगी मैं, किसी डिजिटल वॉलेट पे रखना चाहूँगी, क्योंकि दिस डिजिटल वॉलेट्स गिव मी एन एंटायर प्लेटफॉर्म ऑफ इंटीग्रेटिंग विद वेरियस एप्स. So DigiLocker and different wallets, it could be a Samsung wallet, it could be an Apple wallet, it could be a Google wallet. All these wallets will be on common standards, जिससे ये जो verifiable credential की बात की है हमने, वो interoperable बन जाएगी, बन चुकी है rather, क्योंकि there are common standards for this exchange, and this will enable a whole new ecosystem of wallets, which will further enable the digital ecosystem of exchanges, of IDs, etc. राइट, थैंक यू मैम. सर, समय का अभाव के कारण हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ UIDAI's लॉन्ग टर्म विजन फॉर द डिजिटल इकोसिस्टम एंड हाउ डज दिस ऐप फिट इनटू इट? See, the long term vision is to make the things extremely simple for the Aadhaar number holder, each and every resident. Right. When I sit in my office and see the person who is moving on the roads, those are the persons who are the actual beneficiaries also of the Aadhaar numbers. They have to be facilitated to use it in a most simple possible manner. So if you see the entire history of how Aadhaar has grown from a paper, then we went to the portal, then the apps, and then maybe PVC card. The whole idea is to make it simpler and more simpler for the ultimate end user to use Aadhaar. She is from Technology Center. It's the most complicated area she is working with technically. But that whatever complications are there, the ultimate user should think it is so simple to use. So our long-term objective is to make it simpler to use, to make it easily acceptable, and widen the use cases, widen the base of the Aadhaar. So Aadhaar app is a very major step in this direction, in both terms. Number one, to make it simpler, and number two, to widen the use cases, because now various entities and various services for which the user was facing problems for proving their credentials, identity credentials, it should become very simple. So I think it is going to be a very big step. It's going to change a major change in the digital identity ecosystem. डेफिनेटली सर. और जैसा कि सर हमारा जो डिजिटल इंडिया का मोटो है विच सेज पावर टू एम्पावर, सो इट्स नॉट ओनली सिंप्लीफाइंग थिंग्स, इट्स एम्पावरिंग अस विद सो मेनी सर्विसेज एंड द कंट्रोल इज इन आवर हैंड्स नाउ. थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर एक्सप्लेनिंग द अबाउट द न्यू आधार ऐप विच इज गोइंग टू बी सून लॉन्च्ड फॉर द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री एंड आर रिस्पॉन्डिंग टू आवर क्वेश्चंस इन सच अ सटल मैनर. थैंक यू सो मच. आई थैंक माई व्यूवर्स ऑल्सो जिन्होंने अपना समय निकाल के हमारे शो को सक्सेसफुल बनाया अपने सवालों के साथ. अगर आपको इस शो का कोई भी पार्ट दोबारा सुनना है या कुछ मिस आउट हो गया है तो आप इसी लिंक पे दोबारा जा सकते हैं और हमारी कॉन्वर्सेशन को दोबारा सुन सकते हैं और इस नई आधार ऐप के बारे में जान सकते हैं. हम अभी वो जो QR कोड है ऐप को डाउनलोड करने के लिए वो दोबारा यहाँ पे दिखाएंगे, तो कृपया उस QR कोड को डाउनलोड कीजिए. और चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हैं चाहे आप एप्पल यूज़र हैं तो आप इसी QR कोड को डाउनलोड कीजिए और ये आपको डायरेक्टली ऐप पे ले जाएगा. प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए. आपको स्वयं पता चलेगा कि ये ऐप कैसे और बेहतर है. और अगर ऐप से रिलेटेड आपका कोई भी फीडबैक है या कोई भी कमेंट है तो हमारा YouTube लाइव जो कमेंट सेक्शन रहेगा उसके वो ओपन रहेगा, तो आइए और अपने कमेंट्स उसके ऊपर रखिए. वो हमारे एक्सपर्ट्स तक ज़रूर पहुंचेगा. आप अगर डिजिटल इंडिया वेबसाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट्स हैं digitalindia.gov.in एंड negd.gov.in. आप इनके ऊपर जा सकते हैं, डिजिटल इंडिया के आधार जैसे और अदर इनिशिएटिव्स के बारे में जान सकते हैं और अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं.
अब वक्त आता है कि मैं डिजिटल इंडिया क्वेश्चन निंजाज का नाम अनाउंस करूं। सो आज के डिजिटल इंडिया क्वेश्चन निंजाज हैं प्रशांत जी और चंचल गर्ग जी। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक फॉर विनिंग दिस अवार्ड। आपसे मेरी दरखास्त है कि इस रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको हमारे ईमेल आईडी askourexperts.negt@digitalindia.gov.in, ये जो ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आपको हमें एक मेल भेजना होगा जिसके अंदर आपको अपना सवाल लिखना होगा, अपना नाम लिखना होगा और जिस एड्रेस पे आप अपना रिवॉर्ड चाहते हैं वो एड्रेस लिखना होगा और साथ में मोबाइल नंबर डालना ना भूलिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कंफर्म कर सके, आप तक रिवॉर्ड प्रॉपरली पहुंचा सके। मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, मेरी तरफ से। मैं आपकी होस्ट शिप्रा एब्राहम आपसे विदा लेती हूं। फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते नए एक्सपर्ट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।